یہ کہانی ایک غریب لڑکی زینب کی ہے جو ایک ایسے دیہات میں پیدا ہوئی جہاں عورت کا گھر سے باہر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کی گلیاں کچی تھیں، ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے اور زندگی کا دار و مدار اتو زراعت پر تھا پھر مزدوری پر۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، شام ہونے والی تھی اور زینب کی ماں چولہے پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ دھوئیں سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ زینب برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اس کے والد گھر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر مایوسی تھی۔ آج پھر مزدوری نہیں ملی، رشیدہ حاجی بشیر نے جیسے ہی کہا، ماں کا ہاتھ رک گیا۔ یاسین اور شبیر بھی خاموش ہو گئے۔ زینب نے باپ کی طرف دیکھا جو سخت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ روز یہی دیکھتی تھی، مگر آج اس کا دل بھر آیا۔ اماں، مجھے اجازت دو، میں کسی بڑے گاؤں یا شہر جا کر کام کر لوں گی۔ ماں نے حیرانی سے زینب کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ تاب کیا کہہ رہی ہے؟ زینب رشیدہ بی بی کا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ اماں، گھر کے حالات دیکھو، لوگ تانے دیتے ہیں کہ میں جوان ہو گئی ہوں اور شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کیونکہ سب کو گھر میں بٹھا کر رکھنے والی لڑکی چاہیے۔ میں کام کروں گی، عزت سے، محنت سے، زینب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ باپ نے غصے سے کہا، ہماری لڑکی باہر جا کر نوکری کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر رشیدہ بی بی جانتی تھی کہ اگر زینب نے کچھ نہ کیا تو اس کی قسمت بھی ان گاؤں کی بوڑھی بیٹیوں جیسی ہو جائے گی جو زندگی بھر کسی کی محتاج رہتی ہے۔ کئی دنوں کی بحث کے بعد زینب کے بھائیوں نے بھی اجازت دے دی، مگر ایک شرط پر، وہ کسی جان پہچان والے کے پاس ہی جائے گی۔ زینب کے دل میں خوف بھی تھا مگر امید بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر وہ ہار ماننے کے لیے نہیں نکلی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ زینب اپنے چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے میں چند جوڑے اور ماں کے دیے ہوئے کچھ سکے رکھ کر نکلنے لگی۔ گاؤں میں ایک اونٹ گاڑی جاتی تھی جو دور ایک بڑے قصبے تک لے جاتی، وہیں سے مزید سفر کے لیے کوئی اور ذریعہ ملتا۔ ماں نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی، عزت پر آنچ نہ آنے دینا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اونٹ گاڑی جب چلنے لگی تو زینب نے پیچھے موڑ کر اپنے مٹی کے گھر کو دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب واپس آئے گی، واپس آ بھی سکے گی یا نہیں۔ 2 دن کا سفر تھا۔ راستے میں جگہ جگہ مسافر ملتے، کچھ اچھے، کچھ برے۔ زینب خاموشی سے بیٹھی رہی، کسی سے بات نہیں کی۔ آخر کار وہ ایک بڑے قصبے پہنچی جہاں اس کا ماموں شفیق رہتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان کے یہاں منشی کا کام کرتا تھا اور زینب کی نوکری کی بات بھی وہیں ہوئی تھی۔ بیٹی، یہاں کام مل جائے گا، مگر مشکل ہوگی۔ یہ لوگ نوکروں کو نوکر ہی سمجھتے ہیں، ماموں نے کہا۔ زینب نے سر ہلایا۔ سے بس کام چاہیے تھا، عزت کے ساتھ۔ چودھری فیروز کا گھر ایک بڑی حویلی تھی۔ لمبی دیواریں، لکڑی کا بھاری دروازہ، اندر کئی کمرے اور نوکروں کا ہجوم۔ زینب جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر ایک بڑی عمر کی عورت پر پڑی جو نوکروں کو سختی سے ہدایات دے رہی تھی۔ یہ بیگم سکینہ تھی، چودھری فیروز کی بیوی۔ جیسے ہی اس نے زینب کو دیکھا وہ ٹھہر گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ماموں شفیق نے ادب سے کہا، بیگم صاحبہ، یہ میری بھانجی ہے، بہت محنتی ہے، اب کے کام میں مدد کر سکے گی۔ بیگم سکینہ نے زینب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ایک عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولی، اچھا، کام کرنا آتا ہے؟ جی بیگم صاحبہ، زینب نے نظریں جھکا کر کہا۔ یہاں کوئی غلطی برداشت نہیں ہوتی، صبح فجر سے پہلے کام شروع کرنا ہوگا، جھاڑو لگانا، پانی بھرنا، برتن دھونا اور جو کہا جائے وہ کرنا ہوگا۔ بیگم سکینہ کا لہجہ سخت تھا۔ زینب نے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک خوف تھا، یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ صبح کی اذان ہوئی اور زینب ہڑبڑا کر اٹھی۔ رات بھر زمین پر ایک پرانا بستر بچھا کر سوئی تھی، مگر نیند پوری نہ ہو سکی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں ملیں
तो एक नौकरानी जमो खाला दरवाजे पर खड़ी मिली। चल उठ, बेगम साहिबा ने कहा है कि पूरा आंगन झाड़ू लगाकर बर्तन धोने हैं। ज़ैनब फौरन उठ गई, हाथ में झाड़ू पकड़ी और हवेली के आंगन में जा पहुंची। सूरज निकलने में अभी देर थी, मगर काम का आगाज हो चुका था। वो जमीन पर झुककर झाड़ू दे रही थी कि एक जोरदार आवाज आई, ए लड़की, कान खोल कर सुन, यहां नौकरी करने आई है तो आंखें नीची रख। यहां हुक्म चलाने वाले बहुत हैं। ये गुलाम अली था, चौधरी फिरोज का खास मुलाजिम। इसकी नजरें ज़ैनब को अजीब अंदाज में घोर रही थीं, जैसे इसे किसी चीज का अंदाजा लगाना हो। ज़ैनब ने नजरें झुका लें और काम में लग गई, मगर इसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह जगह किसी आम नौकरी की नहीं, बल्कि ताकत और जुल्म की हवेली है, जहां नौकर सिर्फ नौकर नहीं बल्कि गुलाम समझे जाते हैं। दोपहर को ज़ैनब काम में मसरूफ थी कि अचानक बेगम सकीना की तेज आवाज गूंजी, ये क्या बकवास है? सालन में नमक ज्यादा क्यों है? ज़ैनब ने हैरत से देखा, क्योंकि वो तो बावर्ची खाने में भी नहीं गई थी। बेगम साहिबा, मैंने सालन नहीं बनाया। बेगम सकीना गुस्से में आगे बढ़ी और ज़ैनब के गाल पर जोरदार तमांचा मार दिया। यहां गलती का मतलब सजा है। नौकरों की कोई जबान नहीं होती। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जबान नहीं खोली। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो वो इसी वक्त घर से निकाल दी जाएगी। मगर उसे पैसों की जरूरत थी। मां के चेहरे का ख्याल आते ही वो खामोशी से आंसू पोंछकर काम में लग गई। रात का वक्त था, नौकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे, मगर ज़ैनब अभी भी बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घोर रहा है। ये गुलाम अली था। सुना है ताव गांव की है, यहां नई आई है। इसके लहजे में अजीब सी नरमी थी, जो ज़ैनब को खतरे की घंटी की तरह महसूस हुई। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया और बर्तन धोने लगी। डरने की जरूरत नहीं, मैं भी तेरा भला चाहता हूं। इस घर में जो लड़की इज्जत से रहना चाहे, इसे कुछ खास लोगों के करीब होना पड़ता है। वो करीब आया और ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन एक बर्तन उठाया और पीछे हट गई। मैं सिर्फ नौकरी करने आई हूं, कोई और बात मत करना, ज़ैनब ने सख्ती से कहा। गुलाम अली हंसा, ये तो वक्त बताएगा बच्ची। यहां तेरे जैसे बहुत आए, मगर सबको पता चल गया कि हवेली के उसूल क्या होते हैं। ज़ैनब के हाथ लरजने लगे, मगर उसने अपने खौफ को जाहिर नहीं होने दिया। जैसे ही गुलाम अली आगे बढ़ा, वो भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये पहला मौका था जब ज़ैनब को एहसास हुआ कि ये नौकरी नहीं बल्कि एक जंग है और उसे ये जंग अकेले लड़नी होगी। ज़ैनब के सब्र का पहला इम्तिहान शुरू हो चुका था। वो इज्जत बचाने के लिए आई थी, मगर यहां तो इज्जत को खतरा था। सुबह का सूरज निकला तो ज़ैनब ने अपने आंसू छुपाकर फिर से काम में खुद को मसरूफ कर लिया। मगर रात वाला वाकया इसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। गुलाम अली की नजरें, इसकी मुस्कुराहट और वो अल्फाज जो वो कहकर गया था, सब कुछ इसके ज़हन में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो जानती थी कि अगर इसने हिम्मत न की तो वो भी उन नौकरानियों में शामिल हो जाएगी जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था। दोपहर के वक्त वो बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि अचानक गुलाम अली दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ए लड़की, आज रात मेहमान आ रहे हैं, सबकी खिदमत करनी है, संभाल लेना। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया और चूल्हे में लकड़ियां डालने लगी। मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ज़ैनब। गुलाम अली ने दरवाजा जोर से बंद किया और करीब आया। ज़ैनब ने पीछे हटते हुए कहा, मैं काम कर रही हूं गुलाम अली। बेगम साहिबा से बात करो, मैं बस वही करूंगी जो नौकरी में शामिल है। गुलाम अली हंसा, यहां नौकरी के साथ कुछ और भी शामिल होता है जो तुझे वक्त के साथ सीखना होगा। ज़ैनब ने एक नजर उधर उधर दौड़ाई, कोई नहीं था। गुलाम अली आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। ये लम्हा फैसला कुन था।
ज़ैनब आ तो झक जाए या फिर मुकाबला करे। इसी लम्हे ज़ैनब ने चूल्हे के करीब पड़ी लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और जोर से गुलाम अली की तरफ झपटते हुए बोली, अगर एक कदम और बढ़ाया तो सर फाड़ दूंगी। गुलाम अली चौंक गया। वो ऐसी मुज़ाहमत की तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत ज़बान चलने लगी है तेरी। याद रख, इस हवेली में तुझ जैसी लड़कियों की किस्मत का फैसला मैं करता हूं। वो गुस्से में बोला और दरवाजा धड़ाम से बंद करके चला गया। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे मगर दिल मजबूत था। आज उसने अपने खौफ पर पहला वार किया था, मगर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। शाम हुई, हवेली में रोशनियों की बहार थी। चौधरी फिरोज के खास मेहमान आ रहे थे। नौकरों को हुक्म दिया गया था कि सब कुछ बेहतरीन हो। ज़ैनब को भी खाने के इंतजामात में लगा दिया गया। चाय लेकर ऊपर वाले कमरे में जा, जमो खाला ने ज़ैनब को हुक्म दिया। ज़ैनब ने ट्रे संभाली और ऊपर जाने लगी। दिल में अजीब सा खौफ था, मगर वो हुक्म की पाबंद थी। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर गुलाम अली और दो अजनबी मर्द बैठे थे। आ जाओ, आ जाओ, ये चाय हमारी मेहमान के लिए है, गुलाम अली बोला और ज़ैनब को घूरने लगा। ज़ैनब ने कदम पीछे हटाने चाहे, मगर गुलाम अली ने दरवाजा बंद कर दिया। डरने की जरूरत नहीं, हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बस बैठ जा। ज़ैनब की सांसें तेज हो गईं। से अब समझ आया कि यह सब एक जाल था। मुझे काम है, मैं जा रही हूं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर गुलाम अली ने हाथ पकड़ लिया। यहां से जाने की इजाजत मैं दूंगा, समझी। इसी लम्हे ज़ैनब ने हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे गुलाम अली के मुंह पर दे मारी और दरवाजा खोलकर दौड़ती हुई नीचे आई। बेगम सकीना दरवाजे पर खड़ी थी। ज़ैनब को घबराया हुआ देखकर वो गुस्से में आ गईं। ये क्या बदतमीजी है? कहां जा रही हो इस तरह? ज़ैनब की जबान बंद थी। अगर वो कुछ बोलती तो उसे ही कसूरवार ठहराया जाता। उसने आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अब वो जान चुकी थी कि अगर वो यहां एक दिन और रही तो उसे तोड़ दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा। रात को ज़ैनब ने अपनी चादर ली और कमरे से बाहर निकली। आंगन में अंधेरा था, बस एक पुराना चिराग जल रहा था। वो खामोशी से चलती हुई दरवाजे तक पहुंची, मगर दरवाजा बंद था। किधर जा रही है? एक करख्त आवाज गूंजी। ये गुलाम अली था, हाथ में एक रस्सी लिए खड़ा था। आज तुझे सबक सिखाना होगा। वो आगे बढ़ा, मगर इसी वक्त ज़ैनब ने जमीन पर पड़ी राख उठाकर उसकी आंखों में झोंक दी और दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। रात का अंधेरा, खेतों के रास्ते और दूर किसी गांव की रोशनी, यही ज़ैनब की उम्मीद थी। मगर सवाल ये था कि अब कहां जाए? कौन उसे पनाह देगा? और क्या गुलाम अली उसके पीछे आएगा? ज़ैनब अब भाग चुकी थी, मगर एक औरत के लिए रात के वक्त गांव के रास्ते महफूज नहीं थे। ज़ैनब हवेली से निकल चुकी थी, मगर मंजिल का कुछ इल्म न था। इसके पांव तेजी से कीचड़ भरे रास्ते पर बढ़ रहे थे। पीछे गुलाम अली के चीखने की आवाजें गूंज रही थीं, मगर ज़ैनब को बस आगे जाना था। चांद की मध्यम रोशनी में खेतों की सरहदें वाज़ेह थीं। ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे से टकरा रहे थे, मगर वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। ये रात का वक्त है ज़ैनब, कोई मदद के लिए नहीं राकेगा, उसने खुद को खबरदार किया। आगे एक पुरानी कुनवे वाली जगह थी जहां अक्सर औरतें दिन में पानी भरने आती थीं, मगर इस वक्त वहां कोई ना था। वो कुछ देर के लिए रुक गई, पानी पीने के लिए झुकी तो किसी की सरगोशी सुनाई दी। यहां क्या कर रही हो लड़की? ज़ैनब का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, एक बारिश बूढ़ा शख्स हाथ में लाठी लिए खड़ा था। मैं यहां से जा रही हूं, ज़ैनब ने हिम्मत से जवाब दिया। रात के वक्त कहां जाओगी? रास्ते महफूज नहीं, लोग भूखे भेड़िए हैं, बूढ़े ने उसे घूरा। ज़ैनब ने कुनवे से एक मुट्ठी पानी लिया और अपने चेहरे पर डाला। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, जो होना होगा हो जाए,
वो बोली और आगे चल पड़ी। बूढ़ा उसे जाते हुए देखता रहा मगर कुछ ना बोला। ज़ैनब को अंदाजा था कि वो तन्हा है, मगर ये भी जानती थी कि अगर आज ना निकली तो कल बर्बाद हो जाएगी। रात आधी हो चुकी थी। ज़ैनब गिरती पड़ती एक अजनबी गांव के करीब पहुंच गई। यहां चंद घरों में हल्की रोशनी जल रही थी। वो एक दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से इसकी चादर खींची। कहां जा रही हो बटा? एक भारी आवाज गूंजी। ज़ैनब ने मुड़कर देखा, 4 आदमी खड़े थे। उनके हाथ में लाठियां और आंखों में वहशी पिन था। मैं बस पानी लेने आई थी, ज़ैनब ने बहाना बनाया। पानी? रात के इस पहर? हमें बेवकूफ समझा है? एक आदमी ने इसका रास्ता रोका। ज़ैनब ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर एक आदमी ने इसका हाथ पकड़ लिया। हमें सब पता है, भागी हुई है। हमारे साथ चल। वो जबरदस्ती उसे खींचने लगे। ज़ैनब ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनके पंजे मजबूत थे। इसका दिल चीखने को चाहा, मगर कौन सुनता। तभी दूर से एक औरत की आवाज आई, खबरदार, छोड़ दो उसे। ये एक उधेड़ उम्र औरत थी जो हाथ में मशल लिए करीब आ रही थी। वो मर्द घबरा गए और ज़ैनब का हाथ छोड़ दिया। दफ हो जाओ यहां से, वरना गांव के लोगों को बिला लूंगी, औरत ने धमकी दी। वो मर्द एक दूसरे को देखने लगे और फिर धीरे धीरे वहां से खिसक गए। ज़ैनब हान पत्ती हुई जमीन पर बैठ गई। बेटी, ताब कहां से आई है? औरत ने पूछा। कहीं से भी नहीं, और कहीं जाने के काबिल भी नहीं, ज़ैनब ने नम आंखों से जवाब दिया। वो औरत उसे अपने साथ ले गई। इसका नाम सकीना था, जो गांव में एक बेवा के तौर पर जानी जाती थी। उसका अपना कोई नहीं था, मगर उसने ज़ैनब को सहारा दिया। बेटी, यहां दुनिया जालिम है। औरत अगर घर से निकले तो शिकारी इसके पीछे लग जाते हैं। ज़ैनब ने खामोशी से सर हिलाया। मैं कोई नौकरी ढूंढना चाहती हूं अम्मा, बस किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होना है, ज़ैनब ने इल्तिजा की। सकीना ने गहरी सांस ली। यहां मजदूरी तो है, मगर मर्दों की इजारादारी है। औरत को काम करना आसान नहीं। मुझे किसी से नहीं डरना, ज़ैनब ने फैसलाकुन लहजे में कहा। सकीना ने इसकी आंखों में देखा और फिर सर हिलाया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि तुझे किसी खेत में काम मिल जाए, मगर बेटी, याद रखना, तुझ जैसी लड़कियों के लिए दुनिया में कोई खैर खा नहीं। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में गूंजने लगे। अब वो एक नई आजमाइश के लिए तैयार हो रही थी, अपने पैरों पर खड़ा होने की आजमाइश। ज़ैनब की जिदोजहद अब एक नए मरहले में दाखिल हो रही थी। अगली सुबह ज़ैनब सकीना के साथ गांव के सबसे बड़े जमींदार के खेतों में पहुंची। वहां दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे, मगर औरतें बहुत कम थीं। मालिक के पास चल, शायद ताजह काम मिल जाए, सकीना ने ज़ैनब को कहा और खुद दूर खड़ी हो गई। ज़ैनब हिम्मत करके बड़े दरख्त के नीचे बैठे जमींदार के करीब पहुंची। वो एक मोटा ताजा चालाक आंखों वाला आदमी था, जिसके हाथ में सिगरेट था। सलाम, मुझे काम चाहिए, ज़ैनब ने नजरें झुकाए कहा। जमींदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। काम तो है, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। तो नाजुक लगती है, करेगी? जी, मुझे कुछ भी करना कबूल है, ज़ैनब ने मजबूत लहजे में कहा। अच्छा, तो उधर आ, ये कपास चुननी है, जमींदार ने इशारा किया। ज़ैनब जल्दी से आगे बढ़ी और दूसरे मजदूरों के साथ कपास चुनने लगी। धूप तेज थी, हाथों में कांटे चुभ रहे थे, मगर वो सब्र से काम कर रही थी। चंद घंटों बाद जमींदार फिर उसके पास आया। काम तो ठीक कर रही है, मगर मजदूरी रात को मिलेगी। मेरे घर आकर ले जाना, उसने कहा और आंख मार कर चल दिया। ज़ैनब के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने सकीना की बात याद की, दुनिया में तुझ जैसी लड़कियों के लिए कोई खैर खा नहीं। ज़ैनब खेतों में काम करने के बाद अपने हिस्से की मजदूरी लेने जमींदार के डेरे पर पहुंची।
दूसरे मजदूर अपने पैसे लेकर जा चुके थे, मगर उसे रोक दिया गया था। ताव अंदर आ, तेरा हिसाब किताब वहीं होगा, जमींदार ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके जहन में मां की बातें गूंजने लगीं, बेटियों का घर से निकलना आसान नहीं, दुनिया जालिम है। मैंने सारा दिन मेहनत की है, मेरा हक यहीं दे दो, ज़ैनब ने मजबूत लहजे में कहा। जमींदार कहकहा लगाकर हंसा। हक? लड़की, इस दुनिया में औरत का हक रोटी के साथ इज्जत गिरवी रखकर मिलता है। ज़ैनब ने पिल भर में फैसला कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां से तेजी से भाग निकली। इसका जिस्म कांप रहा था, मगर उसके कदम मजबूत थे। ज़ैनब गांव के बाजार में पहुंची, जहां कुछ औरतें चरखा काट रही थीं। उसने एक बूढ़ी अम्मा के पास जाकर इल्तिजा की, अम्मा, मुझे कोई काम दे दो, मैं भूखी हूं। बुढ़िया ने गौर से उसे देखा और नरमी से बोली, बेटी, तो सनलाई जानती है? हाँ अम्मा, मैं अच्छे कपड़े सीना जानती हूं, ज़ैनब ने फौरन कहा। तो फिर उधर आ, मेरे साथ काम कर, मैं तुझे रहने को जगह और खाने को रोटी दूंगी। ज़ैनब के आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद खुदा ने उसे रास्ता दिखा दिया है। चंद महीनों में ज़ैनब ने अपनी मेहनत से नाम कमा लिया। इसकी सिली हुई चादरें और कपड़े पूरे इलाके में मशहूर हो गए। गांव के लोग जो पहले इस पर शक करते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। एक दिन वही जमींदार उसकी दुकान पर आया और हैरान रह गया। ओ, ताब यहां, उसने तंजिया कहा। ज़ैनब ने नजरें झुकाए बगैर कहा, हाँ, मैं वही हूं जिसे तुम भूखा रखकर इज्जत का सौदा करना चाहते थे। जमींदार को पहली बार एहसास हुआ कि औरत सिर्फ एक कमजोर मखलूक नहीं, अगर वो हिम्मत करे तो अपने नसीब को खुद बदल सकती है। ज़ैनब ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि अपनी मेहनत से अपने घर वालों के हालात भी बदल दिए। आज वो गांव की सबसे कामयाब औरतों में शुमार होती थी। इसकी जिंदगी ने साबित किया कि अगर औरत खुद पर यकीन रखे तो कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता।